ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ MCQ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PS ਟੈਟ C-TET ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 10th ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ MCQ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਇਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦ ਕੰਡਕਟਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਦ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡੈਟ ਫਲੋਸ ਥਰੂ ਇਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਫਲੋ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। A ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ, B 에ਅਰ ਕਰੰਟ, C ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ D ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜਿਸ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਫਲੋਇੰਗ ਥਰੂ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਇਨ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ T ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਨਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। A option is ampere, B is joule, C coulomb, D is ohm। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ SI ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੂਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। SI ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹ ਕੂਲਮ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦਾ CGS, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। CGS ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ C ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, G ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ S ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ CGS ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ CGS ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜੋ CGS ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ। ਓਕੇ, ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, C ਕੂਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਐਂਪੀਅਰ, ਜੋ ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੂਲ ਹੈ, ਜੂਲ ਕਿਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਜੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ। ਓਮ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ, ਚੂਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਮਤਲਬ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। A ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਔਨ ਬੋਡੀ ਮੇ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਹੈਗੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ। ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ। ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦਾ, ਮੀਨਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। रीजन की है ਇਹਦਾ भी इलैक्ट्रिक चार्ज है जो एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज ये जो वैक्टर लॉस ने वैक्टर लॉस ਨੂੰ ओबे नहीं करता। ठीक है, वैक्टर लॉस का मतलब जिमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन होंगे मीनस वो लॉस जोड़े ने वो ये इलैक्ट्रिक चार्ज द्वारा फॉलो नहीं किए जाते। डैट्स वाई इलैक्ट्रिक चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्लीयर। नैक्सट जी सी ऑप्शन आप डिस्कस करते हैं। कूलम इज़ अ CGS यूनिट ऑफ चार्ज। देखो ये तो आप पिछले क्वेश्चन च डिस्कस कर लिया भी चार्ज की जी SI यूनिट है। ठीक है, SI यूनिट है जी कूलम होंगी है ना कि CGS। CGS यूनिट केड़ी होंगी है? स्टैट कूलम। CGS यूनिट इज स्टैट कूलम और SI यूनिट इज कूलम। नैक्सट ऑप्शन डी, अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज। इलैक्ट्रिक चार्ज के फ्लो ਲਈ कंटीन्यूअस ਤੇ क्लोज्ड पाथ ही चाहिए होंगे। तो मीनस इस क्वेश्चन के इनकरैक्ट स्टेटमेंट पूछी सी ते जिहड़ी इनकरैक्ट स्टेटमेंट किहड़ी बनूगी? सी बनूगी। ओके, तो मीनस फोर्थ क्वेश्चन का जिहड़ा ऑप्शन सही है डैट इज सी ऑप्शन। नैक्सट आपां फिफ्थ क्वेश्चन ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ। कन्वेंशनली जी डायरेक्शन है इलैक्ट्रिक करंट की किसी सर्किट के विच आपां किस दे फ्लो नूं लैंदे आ। ए ऑप्शन इज नैगेटिव चार्ज, बी इज एटम्स, सी पॉजिटिव चार्ज, डी न्यूट्रॉन्स। देखो जिहड़ा इलैक्ट्रिक करंट है, इलैक्ट्रिक करंट है जिहड़ा उहदी जिहड़ी कन्वेंशनली डायरेक्शन हुंदी है वो आपां पॉजिटिव चार्ज नाल कंसीडर करते हैं। ओके, तो जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स का फ्लो हुंदा है, इलैक्ट्रॉन्स का फ्लो है जिहड़ा वो एक्चुअली आपां नूं की इलैक्ट्रॉनिक करंट दिंदा हैगा। इलैक्ट्रॉनिक करंट तो वो इलैक्ट्रॉनिक करंट की जिहड़ी है डायरेक्शन हुंदी है इलैक्ट्रॉन का फ्लो, तो जिहड़ी कन्वेंशनली आपां डायरेक्शन कंसीडर करते हैं इलैक्ट्रिक करंट की वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की हुंदी है। ओके, बिकॉज जिस टाइम पर जी ये मतलब डायरेक्शन दी गई सी ना एक्चुअली भी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करके इलैक्ट्रिक करंट है जिहड़ा फ्लो कर देगा तो उस टाइम पर जी इलैक्ट्रॉन की डिस्कवरी होई नहीं सी हजे। डैट्स वाई मीनस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही हुण तक मनी जा रही है भी कन्वेंशनली आपां इलैक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बाय दी पॉजिटिव चार्ज ही देवांगे। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन देखो अगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, SI यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। SI यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट किहड़ी है? ऑप्शन नंबर ए इज द ओम, बी ऑप्शन की है एम्पीयर, सी इज वोल्ट एंड डी इज जूल। इलैक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होंगी है की होंगी है एम्पीयर। ठीक है, बी ऑप्शन है जिहड़ा सिक्स क्वेश्चन का करैक्ट ऑप्शन रहूगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन हाउ मच टाइम 9 × 10⁻³ कूलम ऑफ चार्ज विल फ्लो if an electric current of 6 ampere is drawn by an electrical appliance। देखो इस दे विच जो चार्ज है कितना 9 × 10⁻³ कूलम है, करंट कितना ड्रा कर रहे हैं आप 6 एम्पीयर। फाइंड की करना है टाइम। हुण इस दे विच आपां फॉर्मूला यूज करांगे जिहड़ा कि जिहड़ा चार्ज है वो किस दे इक्वल हुंदा है? करंट इंटू टाइम दे। टाइम कैलकुलेट करना है कि इक्वल बनूगा चार्ज अपॉन करंट दे। चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 9 × 10⁻³ तो करंट कितना 6 है। इनू सॉल्व करके 1500 सैकेंड्स आएगा आंसर, 1500 सैकेंड्स। बट देखो ऑप्शंस दे विच जिहड़ा टाइम है वो मिनट्स दे विच मैंशन है तो मीनस आप इनू 60 दे नाल डिवाइड करके मिनट्स दे विच कन्वर्ट कर देंगे, ये बनेगा 25 मिनट। तो मीनस इसका जिहड़ा सी ऑप्शन करैक्ट है 25 मिनट। नैक्सट क्वेश्चन इज the source of energy which provide the potential difference for the steady flow of current in electric circuit is जिहड़ा source of energy है potential difference provide कर रहा है इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच की होगा वो? A is battery, B is ammeter, C is the voltmeter and D is all of these। इसका आंसर क्या होगा? बैटरी। जो बैटरी है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो मीनस जो 8th क्वेश्चन है इसका जो सही ऑप्शन केड़ा ए। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग ऑफ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट A to B हैविंग पोटेंशियल्स
प्लस 10 वोल्ट एंड माइनस 5 वोल्ट रिस्पैक्टिवली। इस दे विच वर्क डन फाइंड करना हैगा। 2 कूलम चार्ज है जिहड़ा मूव कर रहा हैगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ए ते बी पॉइंट के उपर 10 वोल्ट ते कितना है -5 वोल्ट। मीनस चार्ज किस दे इक्वल है 2 कूलम। पोटेंशियल एट ए कितना हैगा 10 वोल्ट। पोटेंशियल एट बी कितना हैगा -5 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल है वो किस दे इक्वल हुंदा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल किस दे इक्वल हुंदा है वर्क डन पर चार्ज। तो मीनस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस मीनस VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस ये बनेगा किस दे इक्वल आऊगा वर्क डन अपॉन चार्ज। VA माइनस VB कैलकुलेट करते हैं आप, की बनूगा 10 माइनस -5 वर्क डन कैलकुलेट करना है अपॉन चार्ज कितना है 2 कूलम का। 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीनस टोटल कितना आ जाएगा 15 किस दे इक्वल आ गया वर्क डन अपॉन 2। तो वर्क डन किस दे इक्वल आ गया 15 इंटू 2 डेट इज 30 जूल। ओके 30 जूल दे इक्वल आएगा वर्क डन। तो मीनस इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज डी ऑप्शन 30 जूल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजीशन ऑफ स्विच की इन एन इलैक्ट्रिक सर्किट इज। जिहड़ा स्विच की हुंदा है उसका जिहड़ी पोजीशन है इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच किधर हुंदी है। ए ऑप्शन इज राइट साइड ऑफ द सेल और बैटरी। बी ऑप्शन इज लेफ्ट साइड ऑफ सेल और बैटरी। सी ऑप्शन इज एनीवेयर इन द सर्किट। डी बिफोर द सर्किट एलीमेंट। जो स्विच की पोजीशन है वो किते भी हो सकती है इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच, मीनस एनीवेयर इन द सर्किट। ओके सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करैक्ट ऑप्शन है, एनीवेयर इन द सर्किट। नैक्सट की हैगा चूज द इनकोरैक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के रिगार्डिंग जी इनकोरैक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। ए ऑप्शन इज इट इज टेंपरेचर इंडिपेंडेंट। बी इट इज वैलिड ओनली फॉर कॉन्स्टेंट टेंपरेचर। सी इट इज वैलिड फॉर ओमिक रेजिस्टेंस। डी इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू द कंडक्टर। देखो पहले तो ओम्स लॉ हुंदा की है कि जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है वह डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा है करंट दे। V इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने तो कॉन्सटेंट की आ जाता R I। V इज इक्वल टू मतलब IR। जो R है एक ही हुंदा रजिस्टेंस। ओके तो जिहड़ा ये लॉ है कॉन्सटेंट टैंपरेचर के उपर वैलिड हुंदा है, ओमिक रजिस्टेंस लिए वैलिड हुंदा गा। तो यह रिलेशनशिप किहदे विच है पोटेंशियल ते करंट दे विच है। जिहड़ा ए वाला ऑप्शन है ए इट इज़ टैंपरेचर इंडिपेंडेंट, यह इनकोरैक्ट है बिकॉज ये टैंपरेचर के उपर डिपेंड करता है। ओके तो मीनस जिहड़ा इहदा ए ऑप्शन है वो करैक्ट हैगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 12 फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ we design an electric circuit diagram in which we show the arrangement of a different circuit components we find at with respect to resistor। अगर आप ओम्स लॉ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਕਿ ਜੋ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਮੀਟਰ ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ दोनों ही सीरीज़ दे विच कनैक्ट करते हैं। डी ऑप्शन की है एमीटर ते वोल्टमीटर जिहड़े है वो दोनों ही पैरलल कंबीनेशन दे विच कनैक्टेड हुंदे ने। देखो जो आपां इलैक्ट्रिक सर्किट बनाने आ ना तां हमेशा ही जो एमीटर है उसनूं सीरीज़ दे विच कनैक्ट किया जाता है ते जो वोल्टमीटर है उसनूं पैरलल कंबीनेशन दे विच कनैक्ट किया जाता है। तो मीनस इसका जिहड़ा बी ऑप्शन है वो करैक्ट ऑप्शन हैगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमीटर ਨੂੰ हमेशा सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ कनैक्ट करते हैं और वोल्टमीटर ਨੂੰ हमेशा पैरलल कंबीनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ। नैक्सट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रजिस्टेंस डिपेंड ऑन।
जो स्पैसिफिक रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू किस चीज़ के उपर डिपेंड करती है? ए इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ द कंडक्टर, बी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सी नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द कंडक्टर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। जो स्पैसिफिक रजिस्टेंस है, स्पैसिफिक रजिस्टेंस की होंदी हैगी? रजिस्टिविटी। जो रजिस्टिविटी किस चीज़ के उपर डिपेंड करती है? यह डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर इज द सी ऑप्शन है जो करैक्ट रहूगा। नेक्स्ट इज इन सीरीज कंबीनेशन ऑफ रजिस्टर्स द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज अगर आप सीरीज कंबीनेशन के रजिस्टर लगा रहे हैं तो जो करंट का फ्लो है वह किदा होंगे? ए इनिशली इनक्रीजिज एंड दैन डिक्रीजिज, भी शुरू के इनक्रीज करूगा फिर डिक्रीज कर जाता है। बी ऑप्शन इज इनक्रीजिज कंटीन्यूअसली, सी ऑप्शन इज डिक्रीज कंटीन्यूअसली, डी रिमेन सेम। देखो सीरीज कंबीनेशन की होंगे भी जी एक दी आउटपुट है वो दूजे की की बनूगी? इनपुट बनूगी। ये सीरीज कंबीनेशन हो गया रजिस्टर्स का, ठीक है। तो मीनस जोड़ा आप इस रजिस्टर में करंट देवांगे उही करंट है जोड़ा इसनों मिलूगा। ओके, जोड़ा करंट आप फस्ट रजिस्टर में दे रहे हैं उही करंट है जो सैकेंड रजिस्टर में मिलूगा। दैट्स वाई ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ डी ऑप्शन करैक्ट रहूगा, रिमेन सेम। सीरीज कंबीनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ याद रखियो सीरीज कंबीनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ जो करंट है वो तो सेम फ्लो करूगा रजिस्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ पोटेंशियल डिफरेंस है ਜਿਹੜਾ वो चेंज होएगा। नेक्स्ट इज इन योर डेली लाइफ एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन सीरीज कंबीनेशन। इन्हां दे विचों किहड़ा जिहड़ा कंबीनेशन है सीरीज कंबीनेशन फॉलो नहीं करता? ए की है? डेकोरेटिव बल्ब, बी फ्यूज़र, सी डोमैस्टिक अपलायंसिस, डी ऑल ऑफ दैम। देखो जो सीरीज कंबीनेशन है वो डेकोरेटिव बल्ब्स दे विच यूज़ किया जाता है, फ्यूज़ दे विच भी सीरीज कंबीनेशन, बट जो डोमैस्टिक अपलायंसिस ने डोमैस्टिक अपलायंसिस दे विच यूज़ किया जाता है पैरेलल कंबीनेशन। पैरेलल कंबीनेशन ओके, तो मीनस इसका जो सी ऑप्शन करैक्ट है। हुण इसका रीजन सुनो क्यों पैरेलल कंबीनेशन यूज़ किया जाता है। कारण की है? देखो जो सीरीज सर्किट है उहदे विच करंट की है सेम जाना है। मान लो अपना कोई अपलायंस हैगा सीरीज कंबीनेशन दे विच लगाते आपां ने, ठीक है। अगर जिहड़ा करंट इत्थे जा रहा उही इत्थे जा रहा, मान लो ए वाला वर्क करनों हट गया, इस दे विच कोई ना कोई डिफैक्ट आया है तो ए वाला अपलायंस भी है जो काम नहीं करेगा। ओके, तो मीन जो डोमैस्टिक अपलायंसिस ने उस दे विच पैरेलल कंबीनेशन है जिहड़ा वो यूज़ किया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन डिफरेंट ब्रांचिज ऑफ द पैरेलल कंबीनेशन इज जिहड़ा मैग्नीट्यूड है करंट का डिफरेंट ब्रांचिज दे विच पैरेलल कंबीनेशन दे विच की हुंदागा? ए सेम इन ईच ब्रांच, बी डिफरेंट इन डिफरेंट ब्रांचिज, सी डिवाइड्स एज पर नंबर ऑफ ब्रांचिज, डी नन ऑफ दी अबव। देखो जो मैग्नीट्यूड है करंट का डिफरेंट ब्रांचिज दे विच पैरेलल कंबीनेशन दे विच, देखो पैरेलल कंबीनेशन दी आपां डायग्राम बना लैंदे पहला प्रॉपरली समझ आ जाएगा। देखो भाई 3 रजिस्टर्स लगाए ने पैरेलल कंबीनेशन दे विच। हुण इन्हां दे विच की है कि करंट जे मान लो इत्थे करंट दिता, इधर करंट लग जाएगा, इधर करंट है जोड़ा वो लग जाएगा, इस साइड करंट है जोड़ा लग जाएगा, बट जो पोटेंशियल है वो की रहूगा? सेम रहूगा। तो मीनस केड़ा ऑप्शन सही है इस दे विच? डिफरेंट इन डिफरेंट ब्रांचिज, बी ऑप्शन करैक्ट रहूगा इस क्वेश्चन का। भी जो करंट है पैरेलल कंबीनेशन दे विच डिफरेंट होएगा डिफरेंट ब्रांचिज दे विच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जी मतलब रजिस्टेंस है उन्होंने आपने हाफ करता इनिशियल वैल्यू तो। इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट रिमेन अनचेंज्ड, जेकर बाकी जोड़े पैरामीटर्स ने वो अनचेंज्ड ने नहीं चेंज कर रहे, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर विल बिकम, तो जी हीट की होगी 4 टाइम्स होएगी
2 टाइम्स होएगी ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 1/4 ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ ਹੀਟ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਂਦੇ ਆ H1/H2 ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗੀ ਮੀਨਸ R2/R1 ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਤੀ ਹਾਫ ਕਰਤੀ, ਮੀਨਸ R/2 ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ R ਸੀ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣੂਗਾ 1/2 ਦੇ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ H1/H2 ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਦੇ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜੋ H2 ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ 2H1 ਦੇ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ 2 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ 2 ਟਾਈਮਸ ਹੋਏਗੀ। Next is which of the following used almost exclusively for filament of electric lamp? Electric lamp ਦੇ filament ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ? A option is copper, B is silver, C is tungsten, D is titanium। ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਬ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਟੰਗਸਟਨ। ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਨਾ ਕੈਪੀਟਲ W ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜੋ 18 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ C ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? A option is the chemical effect of current, B option is the magnetic effect of current, C is the heating effect of current and D none of these। जो इलैक्ट्रिक फ्यूज है देखो जो ना मतलब अपने इलैक्ट्रिकल गैजेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ करंट है ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨ ਜੇ ਫਿਊਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਟ ਕਰ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਿਊਜ਼, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ C ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? A ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, B ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, C ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ D ਬੋਥ A ਐਂਡ B। ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ लो, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੈਲਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ लो ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਮੈਲਟ ਕਰੇਗਾ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ D ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ A ਐਂਡ B ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, D ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ which of the following terms does not represent electrical power in a circuit। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ VI ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਟੂ ਕਰੰਟ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਓਮਸ ਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, V = IR ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ IR ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ I² × R। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਕਰੰਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ V/R, ਤਾਂ ਇੱਥੇ V/R ਭਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ V² R, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ IR²। ਮੀਨਸ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ IR² ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਪਸ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 22 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। An electrical bulb is rated 220 volt and 100 watt when it is operated on 110 volt
द पावर कंज्यूम्ड विल बी। देखो एक इलैक्ट्रिकल बल्ब है जिसकी पोटैंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी 220 है पोटैंशियल की वैल्यू, तो 100 वाट की वो पावर है। जो उन्होंने आप 110 के उपर ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर वो पावर कढ़नी है आपने। हुण एवें करो कि जो आपको पहले वाले दिते हुए ने 220 ते 100 ये रजिस्टेंस फाइंड कर लो। रजिस्टेंस का फॉर्मूला की होंगे वी स्केयर अपॉन पी। ओके, तो मीनस जो रजिस्टेंस है कितनी बनूगी 220 का स्केयर डिवाइडेड बाय 100, ये रजिस्टेंस आ गई। तो पावर का फॉर्मूला की बनूगा वी स्केयर अपॉन आर, वी स्केयर अपॉन आर। ठीक है, तो मीनस इत्थे तुसी हुण ये रजिस्टेंस की वैल्यू ये पुट कर दो। वोल्टेज कितनी सी 110 सी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर दे 110 का स्केयर इंटू की बनूगा 100 बाय 220 का स्केयर। इनू सॉल्व करो, जो तुसी सॉल्व करोगे इसनू तो ये की बनूगा 25 वाट। 25 वाट बनेगा, इसका डी ऑप्शन करैक्ट होगा 22 क्वेश्चन का। ओके, नैक्सट इज द परपज ऑफ अ रियोस्टैट इज। रियोस्टैट का की परपज होंगे ए इनक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट ओनली, बी डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ओनली, सी ऑप्शन इज इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, डी नन ऑफ दीज। देखो जो रियोस्टैट है ये मैग्नीट्यूड करंट का इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। सी ऑप्शन है जोड़ा इस क्वेश्चन का करैक्ट है। जो रियोस्टैट है डेट होंदा की है वेरीएबल रजिस्टर होंदा है, वेरीएबल रजिस्टर होंदा है। नैक्सट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द गिवन रजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड। इन्हां दे विचों रजिस्टेंस है जिहड़ी वो किस दे उपर डिपेंड नहीं करती। ए लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी एरिया ऑफ द कंडक्टर, सी टैंपरेचर, डी डेंसिटी। देखो जो रजिस्टेंस का फॉर्मूला की होंगे रजिस्टेंस कि उपर डिपेंड करती है, लेंथ के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंगी है, एरिया दे क्रॉस सैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी है। ठीक है, तो मीनस पहले दो ऑप्शन तो करैक्ट ही ने, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, तो जो रजिस्टेंस है वो टैंपरेचर के उपर भी डिपेंड करती है। तो मीनस कि उपर डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी के उपर। जो डी ऑप्शन है डेंसिटी, ठीक है डेंसिटी है जो इसका करैक्ट ऑप्शन रहूगा क्वेश्चन नंबर 24 का। जी रजिस्टेंस है वो डेंसिटी के उपर डिपेंड नहीं करती। नैक्सट इज इन SI यूनिट जूल पर कूलम इज इक्वल टू, जूल पर कूलम किससे इक्वल होएगा, ए इज वोल्ट, बी न्यूटन्स लॉ, सी इज द पास्कल एंड डी इज द ओमेगा। देखो जूल पर कूलम मीन्स जूल की यूनिट है वर्क, कूलम चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये किसके इक्वल होंगे पोटेंशियल दे, पोटेंशियल दे इक्वल होंगे। तो पोटेंशियल की यूनिट की होंगी है वोल्ट, तो मीनस 25 का की आंसर आऊगा ए वोल्ट। जूल पर कूलम किसके इक्वल होंगे वोल्ट दे। नैक्सट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, जो इलैक्ट्रिकल एनर्जी है वो कमर्शियल यूनिट की होंगी है, ए ऑप्शन इज वाट, बी इज वाट आर, सी इज द किलोवाट आर और डी इज द किलो जूल। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की होंगी है किलोवाट आर, इहदा जिहड़ा सी ऑप्शन है वो करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, जिहड़ा 1 किलोवाट आर है वो किसके इक्वल होंगे, ये वैल्यू याद रखियो 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल दे, 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल दे इक्वल होंगे 1 किलोवाट आर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, a current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. Number of electrons passing through a cross section of the filament in 16 seconds would be roughly. करंट कितना गा 1 एम्पीयर ते टाइम कितना लग रहा 16 सेकंड्स। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फाइंड करने ने। देखो जो चार्ज है क्या वो है वो किदे इक्वल होंगे NE दे,
ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਣਗੇ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪੋਨ ਚਾਰਜ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। देखो करंट कितना सीगा 1 एम्पीयर, तो मीनस 1 इंटू टाइम कितना लग रहा है 16 सेकेंड्स। चार्ज ऑन 1 इलैक्ट्रॉन कितना होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देखो जो पावर उपर जाऊगी तो 10⁻⁻ पॉजिटिव बन जूगी 19। ये इनू कट दो उपर कितना आ जाऊगा एक 10, यदि पावर 1 यदि पावर 19 कितनी बनूगी टोटल पावर 20। तो मीनस आंसर कितना आएगा 10⁻20 इलैक्ट्रॉन्स। मीनस इस क्वेश्चन का जोड़ा ए ऑप्शन है वह करैक्ट ऑप्शन है। ये सीगे MCQ इलैक्ट्रिसिटी टॉपिक दे। होप्स ओके तुहानूं ये प्रॉपरली समझ आ गए होणगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन दे विच डाउट हुंदा है तो उसनूं तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच मैंशन कर दिओ, ठीक है। मैं तुहाडे क्वेश्चन का जिहड़ा रिप्लाई है जरूर करूँगी। तो जे तुहानूं इस चैनल का कंटेंट वधिया लग्या तो तुसीं इसनूं सबसक्राइब करो ताकि तुहानूं आउण वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का जिहड़ा लिंक है वो मिल सके ईजली। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।